ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ। ਚੌ ਯੁੱਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ, ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ृंखला ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਥ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਮਨੋਤ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕਹੀਏ ਕਾਇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ 10 ਜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਤਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਿਵਹਾਰ, ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਚ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਮਿਲਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਔਗਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਵਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
नानक मेरे शरीर का एक रथ वाओ, जुग जुग फेर वटाइए, ज्ञानी बुझे ताय। युग युग ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਕਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਲਕਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੈਰੂਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਜੁਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਅੱਗੇ ਲਕਸ਼ ਧਰਮ ਸੀ। धर्म तो मुराद सच्चाई, धर्म तो मुराद परमात्मा, धर्म तो मुराद ईश्वर, सच। जीवन दा लक्ष सच सी। प्राप्ति दा साधन संतोख सी, मनुख संतुष्ट सी। और संतुष्टि ऐसा रथ है, इस दे उत्ते बैठ के मनुख सच दी प्राप्ति करता रहा है, धर्म की प्राप्ति करता रहा। इसनों प्रथम समय विच नापदे हैं, फिर समय का गेड़ चलता रहा। आखिर बहु गिणती दे जीवन का लक्ष्य बदल गया, साधन भी बदल गए। त्रेते रथ जते का, जोर अगे रथवाओ। जिंदगी दा लक्ष्य जोरावर होना, ताकतवर होना, शक्ति होनी चाहिए। बाहां दे बाहुबल इतना होवे जैसे 1000 बावां दे बल होंदा है। ऐसे नाम भी ने प्राचीन महापुरुषों दे, सहनसर बाहु, 1000 बाहां वाला। असी किधरे किधरे देवी देवतावां दे
4-4 हथ बनाए ने, 8-8 हथ बनाए ने, 10-10 हथ बनाए ने, और किसे दे 10-10 सिर भी बनाए ने। 10 सिर रावण ना प्राकृतिक रूप ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 10 ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦਹਿਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ 1000 ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। अगर 1000 हाथ ने तो शरीर भी पहाड़ जैसा होगा, अगर 10 सिर ने तो शरीर भी हाथी नालों भी कई गुना वड्डा होना चाहिए। नहीं, 10 सिरां जैसी चेते शक्ति, 10 सिरां जैसी सोच शक्ति, 10 सिरां जैसी विचार शक्ति जिस दे अंदर सी, असी उसनों 10 सिर आखिया, 10 सिरां वाला। और ਜਿਹਦੇ 2 ਹੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਬਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਕਤ शक्ति जब जीवन का लक्ष्य बन जाए तो मनुख अशांत हो जाता है। जीवन के 2 ही लक्ष्य हो सकते हैं, शांति या शक्ति। शांति प्राप्त करने के साधन होर ने, शक्ति प्राप्त करने के साधन होर ने, और बिल्कुल विपरीत ने। त्रेते रथ जते का जोर अगेर अथवा, तो फिर ताकत ते तां ही हो सकती है शरीर दे जती होवे, और बाहर भी ताकत मनुख तां वधा सकता है संजम नाल चलन वाला होवे, सोच के चलन वाला होवे। तो जीवन का लक्ष्य जद ये बन जाए पहलवान ही होना है, तो फिर जत ही उसका साधन बनेगी। बहुगिणती दे जद जीवन का लक्ष्य ये बन जाए तो फिर वो त्रेता युग है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रथवा। इथे सत तो मुराद उच्चा आचरण, इखलाक। सत तो मुराद सच नहीं है। वास्तविक इथे सत दे अर्थ आचरणशील होना, आचारशील होना, सुंदर आचरण वाला। पर ये बिना तप तो ते नहीं हो सकता। ते तप की इंद्रियां दा दमन। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਆਪਰ, ਦੂਜਾਪੁਰ। और जिस युग दे असी जी रहे हैं, धन गुरु नानक देव जी महाराज इस दे बारे इन फरमान करते हैं। कल युग रथ अगन का कूट
अगे रथुआ। जद कूड़ माया जीवन ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ तो ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ तो फिर तरह तरह के पदार्थों की प्राप्ति किवें करेगा? संतुष्ट है तो प्राप्त कर भी नहीं सकता। तृष्णा झूठ नूं प्राप्त करने का साधन बनती है, उपराला बनती है। कूड़ किसनों कहते ने? जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे ते पकड़िए हथों निकल जाए। जगत स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ चलायमान है। इस वास्ते इसनों कह देता है कूड़ झूठ। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहते ने सब कुछ कूड़ ही कूड़ है। क्यों? किस नाल की जय दोस्ती, सब जग ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ? ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दिन नहीं टिकया, रात नहीं टिकी, जीवन नहीं टिकया तो फिर कुछ भी टिकया होया नहीं है। सब कुछ चलायमान है। जो चल रहा होवे ते चलायमान होवे उसे नूं कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है। पकड़न की कोशिश करांगे हथों निकल जाएगा। दिन नूं पकड़न की कोशिश करिए गया, रात नूं पकड़न की कोशिश करिए गई। इस तरह जवानी नूं पकड़न की कोशिश करिए हथों निकल जाएगा। जीवन हथों निकल जाता है। जो हथों की पकड़ दे च ना आवे, जैसे पवन नूं पकड़न की कोशिश करिए ते हथां दे च बंद करिए, मुट्ठी दे बंद करदे ही हवा निकल जाती, पवन गई। जो पकड़ दे च ना आवे, चलायमान है, उसनों चंचल आख्या है, उन्होंने कूड़ आख्या है। पर जीवन का लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन की प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे। बस एक कूड़ चाहिए, यही संसार चाहिए। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते फरमान पे कर देने, वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा प्रबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देण की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरबाणी कहंदी है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण की भावना होवे ते लैके ही खुशी मिलती होवे, बस उसे नूं आख्या गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है। दिते नालों लिथा चंगा मनमुख एवें जानी। किस तरह जानोगे? मनमुख है जिसकी सारी खुशी लैण दे च खड़ी है। जद किधरे देना पै जाए औखा होंदा है, दुखी होंदा है, परेशान हो जाता है। पर जिथों किधरों लेना पै जाए और मिले खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। लेना खुशी है, देना दुख है। ये लोभी दे लक्षण ने। हथों दे के भला मनाए, दे के खुशी होंदी है, दे के प्रसन्नता होंदी है। और जिसनों दिता जाता है उसका भला भी मंगदा है। ऐसी मनोवृत्तियां ने तो ऐसा जीव महान है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य देण दे च है, पर जे लैण दे च है तो लोभी। अगर कूड़ झूठ पदार्थ संसार ही
जीवन का लक्ष्य है, तो प्राप्ति का साधन तृष्णा होवेगी। तृष्णालु का लक्ष्य कूड़ होंदा है, माया होंदी है, संसार होंदा है, पदार्थ होंदे ने। और महाराज कहते ने मनुखी दुनिया ते जात मार के देखिए, नानक कूड़ रहा भरपूर। कूड़ ते व्यापक है और बड़े व्यापक पद्धर ते चल रहे हैं। इत्थे ते कोई किधरे सच बोल देवे ते हुण झूठ समझिया जाता है, पर झूठ बोले ते सच समझिया जाता है, क्योंकि व्यापक ओही है। हजारां पागलों के इकट्ठ दे किधरे कोई इकद सियाणा आ जाए तो हजारां पागलों की दृष्टि दे वो सियाणा पागल है या उसनों पागल कर देंगे। जैसे ये अनुभव है, भीड़ जिस पासे चल रही होवे कल्ले नूं उसे पासे चलना पैंदा है, या फिर पूरा संघर्ष करे। देखण दे चाहे भगत ते अवतारां दी जिंदगी बड़ी संघर्ष दे चलंगी, क्योंकि जिस पासे भीड़ सी अवतार उस पासे चलन नूं राजी ना होए, और अवतार दा मतलब सी भीड़ दा रुख मोड़ीए। रुख दे मुड़दे ही लक्ष्य बदल जाता है, और भीड़ आखिर संघर्ष ते उतारू होवे तो अवतारां नूं सूली ते चढ़ना पैंदा है, अवतारां नूं तत्ती तवी ते बैठना पैंदा है, अवतारां नूं पिंजरियां विच कैद होना पैंदा है। हैरानगी है कि जगत दे जितने चोटी दे सतवादी ने उन्हां नाल संसार ने बड़ा अन्याय किया है। संसार ने बड़ी बेइंसाफी की थी। वास्तविक पागलों की भीड़ विच जो जितना सियाणा होवेगा उतना ही पागल कहलाएगा। दूर क्यों जाओ, इस भीड़ ने कह दिता सी गुरु नानक नूं। सतगुर आप कहते ने, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। ए विचारा नानक भूतना हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया। भीड़ ने ते गुरु नानक जैसी अजीम शक्ति नो, महान आलम नो, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर नो, रब्बी चिंतक नो, प्रभु दी मूर्ति नो भूतना कह दिता। हैरानगी है, जो सारियां दे भूत ने उतारन आया है, जगत उसनों भूतना कहता है। जो हर एक दी जिंदगी नूं ताल देण लई आया है, जगत उसनों बेताला कहता है। ऐसा क्यों? भीड़ तृष्णालुआं दी है, भीड़ मायाधारियां दी है। ते मायाधारी किसनों कहोगे? जिस दी जीवन दा लक्ष्य संसार है, पदार्थ है, जी रहे है पदार्थां दी खातर, जी रहे है संसार दी खातर। तो संसार वड्डा हो गया, पदार्थ वड्डे हो गए, धन ही महान हो गया। ये जीवन ते कुछ भी नहीं है। जीवन उस दिन महान बनता है जब लक्ष्य इस जीवन तो उच्चा होवे, तो वो परम जीवन ही हो सकता है। ते परम जीवन परमात्मा ही है। जिन्ने चिर तक जीवन का लक्ष्य परमात्मा ना होवे, उतने तक मनुख उच्चा नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। तो ये विचारधारा ते खड़े सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हुण इसनूं वास्तविक सच्चाई दे आईने विच देखण दी कोशिश करिए। मनुख चार तरह की अवस्थावां चों लंघदा है। प्रथम गर्भकाल की अवस्था, दूजा हुण धरती की गोद दे च आ गया। पहले मां की कुख दे सी, हुण धरती की कुख दे च है।
बच्चा है। तीसरी अवस्था जवान हो गया। चौथी अवस्था बुढ़ा हो गया। इन्हां चार पड़ावां तो एक मनुख नूं लंघना पैंदा है। गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। बिरध इंसान दी अपनी तर्जे जिंदगी है। जवानी दा अपना ढंग है, बच्चे दी अपनी दुनिया है और गर्भ काल दे बच्चे दी अपनी अवस्था है। इस हिसाब दे नाल अगर युगां नूं वेखीए, सतयुग गर्भ काल दी अवस्था है, त्रेता बचपना है, द्वापर जवानी है, कलयुग बुढ़ापा है, बुढ़ा युग है। अगर सच्चाई नूं वेखना होवे बच्चे नालों, गर्भ काल दे बच्चे नालों, खिडौणियां नाल खेडदे होए बच्चे नालों और जवान नालों, बुढ़ापा इस वास्ते महान है कि उसदे कोल जिंदगी दे तजर्बे आउंदे ने, उतार चढ़ाव दा सारा बोध आउंदा है। शायद इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग नूं महान आख दिता है। सतयुग त्रेता द्वापर भणिए, कलयुग उत्तम जुगा माही। ये युग उत्तम युग है, क्यों? सियाणा युग है। और ये गल ते मन्नी पर मन्नी है, इस युग दे जितनी सियाणप उजागर हुई है, जैसे जैसे पीछे जाओगे उतनी नहीं सी। ये जो चार युग ने, गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी ते बुढ़ेपा, इन्हां दे अपने अपने अवतार ने। उसनों गुरबाणी अपने ढंग नाल बयान कर दी है और इसनों वाकई सच्चाई दे रूप विच, हकीकत दे रूप विच असी देखीए ते समझण दी कोशिश करिए। चार युग मनुख दे जीवन दियां चार अवस्थावां, गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी और बुढ़ेपा। सतयुग गर्भ काल दी अवस्था सी। गर्भ काल दा बच्चा मां दे स्वासां नाल स्वास लैंदा है। मां जो खांदी है उसदी ओही खुराक है। मां जो पींदी है बस उसदा ओही पान है। सुतंत्र रूप दे उसदा खान पान नहीं है। सतयुग दे मनुख पहाड़ां दियां कंदरां थले या रुखां थले रहिंदा सी। प्रकृति जो दे रही सी फल फुल ओही खा लैंदा सी। अपनी तरफों कोई भोजन बनाना और उन्होंने सवारना, ये अजे मनुख ने नहीं सीखिया और लोड़ भी नहीं सी। अबोध सी, लेकिन एक विचारधारा भारत दे मनीष ने मनी है कि गर्भ काल दा जो बच्चा है वास्तविक उस हालत दे च है जिस हालत दे च एक योगी समाधि दे चाहता है, एक ब्रह्म ज्ञानी समाधि दे चाहता है। समाधि दे जो आनंद आउंदा है वही आनंद उस कोल है, वही रस उस कोल है। फिर जीवन भर उसे ही आनंद नूं ओ लभदा है। ये आनंद सुभाव किसनों प्रकृति ने ही प्रदान किया है। निश्चिंत है, चिंता रिज़िक दी आउंदी है तो मां दी खुराक उसदी खुराक है। मां दा पीता होया पानी वही उसदी प्यास बुझा रहे है। मां दे श्वासां नाल श्वास ले रहे है। इस बच्चे ते कोई समाज राज नहीं।